Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back. Welcome to lecture number 5 of macroeconomics. पहले की तरह चंद मिनट के लिए we'll try to revise the previous lecture and then we'll start today's lecture. So what we have learned in the previous lecture, we discussed how the total output in the economy is determined. As we discussed, as we learned that output is determined by the factors of production. Mainly there are two factors of production which are used in the production process, and that is capital and labor with the level of technology. So output is produced or determined by the how much capital and labor the economy has and the level of technology also. Then we said that competitive firms hire each labor until its marginal productivity equals the price of the labor, right? So till how long the firm will continue to hire labor, or till how long they will use capital in the production process, ये भी हमने देखा. और हमने ये कहा कि फर्म उस वक्त तक जो है लेबर हायर करती रहती है प्रोडक्शन प्रोसेस में जब तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी प्राइस के बराबर आ जाती है, दैट इज वेज, राइट. सो द फर्म विल कंटिन्यू टू हायर लेबर टिल द पॉइंट कास्ट इज इक्वल टू बेनिफिट. तो यहाँ पे जो बेनिफिट है दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और जो कास्ट है दैट इज द वेज, राइट. सो फर्म जो है उस वक्त तक एक लेबर को हायर करती रहती है प्रोडक्शन प्रोसेस में जब उसकी बेनिफिट और कास्ट बराबर हो जाए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट W इज इक्वल टू MPL, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कर इज इक्वल टू इट्स वेज रेट. Similar is with the capital. The firm will employ capital in the production process until its marginal productivity is equal to its price, or benefit is equal to cost. So the price of capital is rental rate. So the firm will continue to hire or use the capital in the production process till the time its productivity, which is the marginal productivity of capital, is equal to the price of capital, which is the rental rate. If the production function has constant return to scale, then the labor income plus capital income equal the total income or the output in the economy. So if we assume that if there are constant return to scale, what we mean by constant return to scale, ये भी हमने सीखा. अगर आप इनपुट बढ़ाते हैं 10% से और आउटपुट भी 10% बढ़ती है तो हम ये कहते हैं कि there are constant return to scale in the economy, right? If output increase more than the increase in output, then there are decreasing return to scale, increasing return to scale. And if increase in output is less than the increase in input, so then there are decreasing return to scale, right? So if the production function has constant return to scale, then the total labor income plus the capital income equals the total income or output in the economy. तो ये चीज़ें हमने सीखी, हमने देखा कि आउटपुट को किस तरह से डिटरमिन किया जा सकता है, किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है. हमने ये कहा कि कैपिटल है एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर है और टेक्नोलॉजी का एक सर्टेन लेवल यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. और उस वक्त तक फर्म प्रोड्यूस हायर करती रहती है मोर इनपुट्स लाइक कैपिटल एंड लेबर until its marginal productivity is equal to its price. This was all about the previous lecture. Now we'll start today's lecture. We'll continue the with same topic, national income, where it comes from and where it goes, part 2. जैसा कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि how that output which is produced by different factors of production and available technology, how that output is used in the economy, किस तरह से उस output को इकोनॉमी में यूज किया जाता है, उस पे आज हम बात करेंगे, उसको डिटेल से देखेंगे. इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज चीज़ें हम सीखेंगे, सेविंग्स की बात करेंगे, we'll talk about loanable fund market, then we'll talk about saving or interest rate का relationship देखेंगे. So we'll talk about two markets where
the output is used normally. We'll talk about goods market, we'll talk about loanable funds market. So first of all, we'll talk about the goods market, and here we'll talk about the demand for goods and supply of goods. So how output is used in the goods market, and then how output is used in the loanable funds market, that is the financial market. So we look at the demand for goods and services first of all in the goods market. As we know that हमने पिछले lectures में पढ़ा है GDP is equal to C plus I plus G plus NX. That gross domestic product or the output or the income of the country is equal to consumption, household consumption, plus investment, plus government spending and net export. Here, if we assume that the economy is closed, that the country is not engaged in international trade or the trade with other countries, so then we can say that कि जो इनकम है, जो Y है या GDP है, is equal to only C plus I plus G. So some part of the output is used for household consumption, some is used for investment, and some is used by the government to meet their expenditures. So output is used between the three components of GDP, C plus I plus G, and we have no NX here because we assume that the economy is closed and the country is not involved in trade with other countries. So components of aggregate demand here in this case then will be C, that is the consumer demand for goods and services, household demand for goods and services. I is the demand for investment goods, and then the G is the government demand for goods and services, that is closed economy, no NX. So consumption, जैसे कि हमने पिछले lectures में पढ़ा था, consumption different तरह की हो सकती है. Household consumption on durable goods like car, refrigerator, air conditioners, and consumption on non-durable goods like food, clothing, and similarly consumption on services also, like if you are cleaning your clothes, dry cleaning your clothes, if you are traveling, so you pay for their services, so that is also the consumption of the household. Investment की हमने बात की कि और investment for goods, so investment is both at the firm's level, at the public, at the government level. ये भी कहा कि इन्वेस्टमेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की हमने बात की, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की, हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात की. So at the national level, investment is the combination or sum of the both private and public investment. And then we talked about government expenditure. Government expenditure basically is the expenditure on development side and the non-development side. So अगर आप तीनों को जमा कर लें, consumption को, investment को, government spending को, this will tell us the aggregate demand of goods and services in the economy. Now एक एक करके इन पे हम बात करते हैं consumption के. Disposable income, all please remember that consumption जो है is always depends on the disposable income, that is the income after direct taxes, right? So if you subtract the taxes from Y, so that will give us the disposable income, the income which is disposable or which the consumer or the household can use for the purchase of goods and services. Now if we use this disposable income, we can write the consumption function. We can say that consumption is a function of Y minus T, that is consumption is a function of disposable income. And the relationship between these two variables, between the income and the consumption, is like that. If there is an increase in income, this will lead to increase in consumption. But please keep in mind, the increase in consumption will always be less than the increase in income. तो जितना income में इजाफा होता है, consumption में उतना इजाफा नहीं होता, and this is because of the Keynes psychological law of consumption कि income बढ़ने से consumption बढ़ती तो है, लेकिन उतना इजाफा नहीं होता जितना कि income में हुआ है. इसी में हम एक concept use करते हैं, marginal propensity to consume.
सो इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन जब बढ़ती है या इनकम के चेंज से जब कंजम्पशन में चेंज आती है तो वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड दैट इज द इंक्रीज इन द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन disposable income, right? So MPC is an important and can be calculated as MPC is equal to delta C over delta Y. That is, delta is for the change we use any if we want to measure, जब भी किसी वेरिएबल में हम चेंज मेजर करना चाहते हैं तो ये हम नोटेशन यूज करते हैं डेल्टा की। और यहाँ पे whenever there is a change in income consumption due to change in income, that is the marginal propensity to consume. Now we'll draw this consumption function and try to explain with the help of a diagram. As we know that we have two axes when we want to draw a diagram. On y-axis we measure consumption और एक्स एक्सिस पे हम डिस्पोजेबल इनकम लेते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि कंजम्पशन और इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कंजम्पशन और इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है। और तो इस अगर ग्राफ जो आप सामने देख रहे हैं ग्राफ से ये नज़र आ रहा है, इट इज़ स्ट्रेट और पॉजिटिव लाइन विच इंडिकेट्स दैट कि इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी बढ़ रही है एंड दिस लाइन और दिस कर्व इज नोन एज द कंजम्पशन फंक्शन। अब द स्लोप जो है इस कंजम्पशन फंक्शन का, द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं आप, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर एक यूनिट इनकम में इजाफा होता है तो उससे कंजम्पशन में भी इजाफा होता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा डिटेल में हम आगे चैप्टर 15 में पढ़ेंगे जाके, ये केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। केन्स जो इकोनॉमिस्ट है जिसने ये कहा था कि कंजम्पशन और फंक्शन इनकम का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। सो we have a positively sloped consumption function or the consumption curve which tells us that consumption and income are positively correlated, and the slope of the consumption function is the marginal propensity to consume. Now the second component of aggregate demand or the demand for goods and services is the investment. इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन हमने डिटेल में पढ़ी पीछे पिछले लेक्चर में, एंड वी डिटरमिन्ड दैट वी सेड दैट इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट वेयर आर डिनोट्स द रियल इंटरेस्ट रेट, द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट corrected for the inflation. So for always when we say that investment is a function of rate of interest, so that means that investment is depending on the real interest rate, not on the nominal interest rate. The real interest rate basically actually is the cost of borrowing. जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक तो ये है कि आपकी अपनी अमाउंट है, अपनी इनकम है, उसको यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Sometime you need to borrow or get loan from the banks or from the house individuals. तो R जो है R rate of interest जो है is the cost of borrowing money from the banks or from the individual. And secondly, the opportunity cost of using own funds to finance investment spending. एक तो ये है कि अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि R जो है इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अगर आप कहीं से पैसे उधार लेते हैं, लोन लेते हैं बैंक से या किसी बंदे से, तो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। सो इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स। सेकंड ये है कि इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके अपने पैसे हैं, अपने पास एसेट्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, तो आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हैं, राइट। अगर आप वही पैसे कहीं बैंक में रखते तो यू विल गेट द इंटरेस्ट रेट। सो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो द interest, real interest rate, known as also the real interest rate of investment.
एंड एज वी सेड दैट इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, क्योंकि लॉजिक ये है कि जब इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पीपल वुड प्रेफर टू deposit their money in the banks and to earn interest rate on their money instead of investing. Similarly, if interest rate goes down, दूसरी वजह ये हो सकती है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोगों की जो डिमांड फॉर मनी है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस वो कम हो जाती है, राइट। तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, सो इन्वेस्टमेंट विल गो अप। सो वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट में कमी वाक़ हो जाती है और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है। इसी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, एंड दैट will become the investment function. On y-axis we are measuring rate of interest, on x-axis we are measuring investment. As we said that दोनों के दरमियान जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा होता है तो इन्वेस्टमेंट में कमी वाक़ होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी वाक़ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। So we get a negatively slope that investment function curve that tells us that कि दोनों के दरमियान जो है inverse relationship है। Spending on investment goods is downward sloping function of the real interest rate. The third component of aggregate demand is the government spending. Government spending includes government spending on goods and services. It excludes the transfer payments, and we assume that the government spending and the taxes are exogenous, are given at the national level, at the economy level. So we can write that G is equal to G bar. जब भी bar लिखते हैं तो it means it is fixed, it is given, and T is equal to T bar, that is also fixed or given. So गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं दो तरह की, जैसा कि हमने कई दफ़ा जिक्र किया, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग दो तरह की होती हैं। एक तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं और दूसरी साइड पे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज लॉट ऑफ कैटेगरीज लाइक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, expenditure on the development scheme, electricity, any kind of development activity पे जो खर्चा होता है इकोनॉमी का, that is known as the public expenditure. And there the second type of expenditure at the government level is the non-government expenditure. जैसे कि आपको अंदाज़ा है government has to functions their departments and they have to pay salaries to their employees, और इसी तरह गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, VVIPs हैं, उनके ऑफिस के उनके अदर जो अखराजात हैं वो सारे के सारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स on goods and spending on goods and services, and it excludes the transfer payments in the form of insurance, in the form of gifts, तो वो इसमें हम शामिल नहीं करते। And we assume that the government expenditure G is equal to G bar, it is given. We also assume that the income taxes, which is the main source of income in the country, that is also given. So the market for goods and services, so we can write after discussing all these three components, तीनों components को हमने aggregate demand के जो थे अलग-अलग डिस्कस किया, consumption को, investment को और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। तो इन तीनों को मिलाने के बाद वी कैन राइट द एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन। अब कैसे लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन? जैसा कि हमें पता है एग्रीगेट डिमांड कैन बी रिटन एज C plus I plus G, एज वी सेड दैट C इज a function of Y minus T, Y bar Y जो इनकम है also given, minus T is the taxes are also given, plus I into R plus G bar. We have already discussed the supply side of goods market, and we said that we have a production function. Y is a function of capital and labor, and we assume that capital and labor is also given. And Y, so when K bar is given, K is given, L is given,
तो हम ये कह सकते हैं कि y is also given. So how we can determine the equilibrium in the goods market, as we know that equilibrium कहाँ पे होता है, जैसा कि अगर आप माइक्रो में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में equilibrium वहाँ पे होता है जहाँ पे quantity demand is equal to quantity supply. तो here since we are talking about the whole economy, we are talking about macroeconomics. तो माइक्रो में तो quantity demand of an individual is equal to quantity supply of the product. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी की. जब आप पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो we'll talk about aggregate demand and aggregate supply. So aggregate demand हमारे पास given है C plus I plus G, and then aggregate supply is also given. Y bar is equal to K, a function of capital and labor. So if we equate these two equations, aggregate demand and aggregate supply, this will give us the equilibrium in the goods market. So we can write that Y bar is equal to C into Y bar minus G plus I is a function of interest rate plus G bar. So aggregate demand is equal to aggregate supply, and this determines the equilibrium in the goods market. अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो y bar is fixed, t is fixed, g bar is fixed are given. Only rate of interest is playing a very important role, and that brings the equilibrium in the goods market. That interest rate basically adjusts to equate the demand and supply. It works on the both sides of the market, that it can adjust the demand as well as it adjusts the supply and brings the equilibrium in the goods market. So this is how we can determine the equilibrium in the goods and services market. Now we'll come to the second part of this today's lecture, कि कहाँ पे जो है और क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आउटपुट को यूज़ किया जा सकता है, इनकम को खर्च किया जा सकता है. That is the equilibrium in the financial market, and here we would like to discuss the loanable funds market, right? Again, when we want to explain a market, we need to look at the supply side of that market, we need to look at the demand side of that market. In this case, again, if we want to analyze the situation of loanable funds market, तो हमें simple supply and demand model देखना पड़ेगा financial system का. So what is the demand of funds and what is the supply of loanable funds? तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास market में equilibrium determine हो जाएगा. Demand for funds. Why people demand for funds? Here the people demand for funds for investment purposes at the individual level, at the household level, as well as at the national level. Government also demands for funds for the investment purposes, right? So one's asset loanable funds, मतलब एक individual के जो assets हैं या एक इदारे के जो assets हैं, that becomes loanable funds available to the others people in the economy, to the government for investment purpose. So we can say that people demand funds for the investment purposes. For investment के लिए लोग funds demand करते हैं. Supply of funds came from saving. जो savings होती हैं at the individual level, at the household level, at the national level. So public saving, private saving, तो supply वहाँ से आती है. और जो price of funds है, that is the real interest rate, that brings equilibrium in the market and that adjusts the equilibrium between supply and demand. तो दोनों को equate करती है, help करती है कि market में equilibrium determine हो जाए. तो this is the just introduction, the things which we need to discuss in the loanable funds market. जैसा कि मैंने कहा, एक साइड पे डिमांड फॉर फंड्स होती है और डिमांड फॉर फंड इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एट अ हाउस होल्ड लेवल, एट द नेशनल लेवल. और सप्लाई कहाँ से आती है? सप्लाई ऑफ फंड्स आती है एट द नेशनल फ्रॉम द सेविंग्स. And savings are at the private level, at the public level. दोनों को ऐड करें तो that will become saving available in the economy.
प्राइस ऑफ जो फंड्स है that is the interest rate. Now we look at these two sides of the loanable funds market separately. First, the demand of our funds, and as जैसा कि मैंने कहा कि फंड्स को डिमांड इसलिए किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट की जाए, फ्यूचर में कैपिटल में इजाफा किया जाए. सो द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, from borrow to finance, spending on plant. नया प्लांट लगाना है, नई मशीनरी लगानी है, नई बिल्डिंग बनानी है, नए ऑफिस बनाने हैं, एक्सेट्रा. कंज्यूमर borrow to buy new houses. तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फंड्स डिमांड करने के लिए, फंड्स borrow करने के लिए, कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपने मशीनरी खरीदनी है, आपने कोई प्लांट लगाना है, आपने जो है कोई ऑफिस बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, इसी तरह आपने नया घर बनाना है, उसके लिए भी फंड्स डिमांड कर सकते हैं, बारो कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑप्शन फॉर बोरोइंग फंड्स. बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसके लिए हाउस होल्ड या गवर्नमेंट जो है फंड्स बारो करती है. और जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट पे खर्च करना होता है, इक्विपमेंट मशीनरी खरीदनी होती है, ऑफिस बनाने होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स आपने हायर करना है, लोगों को पैसे देने हैं. इसी तरह आप घर कोई बनाना है आपने, तो उसके लिए भी. तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर द डिमांड ऑफ फंड्स. And the demand for funds negatively depends on the price of funds. जैसा कि मैंने बताया आपको कि price of funds क्या है, is the interest rate है, और negatively depend करता है. अब कैसे negatively depend करता है? Because जैसा कि मैंने कहा पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, rate of interest जो है is the cost of borrowing of funds. तो जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ बारोइंग ऑफ फंड जो है क्या है, उसमें इजाफा हो जाता है. तो जब कॉस्ट ऑफ बारोइंग में इजाफा होता है तो डिमांड फॉर फंड्स में कमी वाक़ हो जाती है. डिमांड फॉर फंड्स में जब कमी वाक़ होती है तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट में कमी वाक़ होती है. तो एंड वाइस वर्सा. इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ आती है तो कास्ट ऑफ बारोइंग जो है वो उसमें कमी वाक़ आती है. जब कास्ट ऑफ बारोइंग में कमी वाक़ आती है तो डिमांड फॉर फंड्स बढ़ जाती है. जब डिमांड फॉर फंड्स बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है. तो वी कैन से दैट द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द इंटरेस्ट रेट, राइट. तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स बढ़ जाती है और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है. इस बेस पे, इस लॉजिक की बेस पे वी कैन डिटरमिन द नेगेटिव डिमांड कर्व, लोनेबल फंड्स डिमांड कर्व. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वी हैव टू एक्सिस. ऑन वाई एक्सिस हम मेजर कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को, ऑन एक्स एक्सिस वी आर मेजरिंग इन्वेस्टमेंट, एंड वी हैव ए नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व फॉर लोनेबल फंड्स. जैसा कि हमने कहा, डिस्कस किया कि लोनेबल फंड्स की डिमांड का और इंटरेस्ट रेट का, दैट इज़ द प्राइस ऑफ फंड्स, नेगेटिव रिलेशनशिप है. यानी कि जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स में कमी वाक़ हो जाती है और इन्वेस्टमेंट कम होती है. एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स गोज अप and the investment will go up. So by this logic, by this theory, we can draw the negatively sloped demand curve for loanable funds, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है. तो this is the demand curve for loanable funds in the loanable fund market. Now we'll talk about the other side, the second side of the loanable fund market, that is the supply side. क्योंकि हमें अब हमने करना क्या है, we are trying to bring equilibrium in the देखना चाह रहे हैं कहाँ पे जो है फाइनेंशियल मार्केट में, लोनेबल फंड मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा. तो एक साइड तो हमने मार्केट की डिस्कस कर ली, अब दूसरी साइड मार्केट की है सप्लाई साइड. तो दोनों को जब मिलाएंगे तो हम इक्विलिब्रियम बताने की पोजीशन में होंगे. द सप्लाई कहाँ से आती है? जैसा कि मैंने कहा, द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कम्स फ्रॉम सेविंग. अब सेविंग दो तरह की हो सकती है. एक तो हाउस होल्ड यूज देयर सेविंग टू मेक बैंक डिपॉजिट्स, परचेज बॉन्ड्स. अब हाउस होल्ड जो है उनकी जो सेविंग्स होती हैं
वो कहाँ क्या करते हैं, दे मेक बैंक डिपॉजिट्स, बैंक्स में जमा करा देते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं और कुछ दूसरे एसेट्स खरीद लेते हैं. दीज फंड्स बिकम अवेलेबल टू द पब्लिक, टू द फर्म्स, टू बोरो, टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग. तो ये जो फंड्स हैं, जो सेविंग यूज़ करते हैं टू डिपॉजिट, टू मेक डिपॉजिट्स, टू बोरो, टू परचेज बॉन्ड्स खरीदने में और कोई अदर एसेट्स खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, ये जो फंड्स हैं अवेलेबल होते हैं फर्म्स को. वो लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं बैंक से और उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट. तो सेविंग जो है, हाउस होल्ड की जो सेविंग है, दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री और इन द इकोनॉमी. जो सेविंग्स होती हैं, दूसरी सेविंग्स अवेलेबल होती हैं दूसरे लोगों को, तो और उधार ले लेते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. दूसरा जो part of saving ka is the government saving. Government may also contribute to saving, and if it does not spend all the taxes, जितना भी उसकी इनकम आई है टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अगर वो सारे के सारा वो खर्च नहीं करते, गवर्नमेंट के पैसे बच जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट के जो पैसे पब्लिक सेविंग है वो भी अवेलेबल होती है फॉर द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. तो सप्लाई जो है लोनेबल फंड्स की दो तरह से होती है, एक तो प्राइवेट सेविंग, हाउस होल्ड की जो सेविंग है, और एक पब्लिक सेविंग से. अब प्राइवेट सेविंग कैसे अवेलेबल होती है, जब प्राइवेट लोग, हाउस होल्ड जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं सेविंग करते हैं, तो या तो वो बैंक्स में जमा करा देते हैं पैसों को, या वो पैसे के बॉन्ड खरीद लेते हैं, या कोई दूसरे एसेट्स खरीद लेते हैं जो कि दूसरे लोगों को अवेलेबल होते हैं, फर्म्स को अवेलेबल होते हैं टू बोरो दैट मनी फॉर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, राइट. इसी तरह गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जैसा कि हमें पता है कि मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज आर टैक्स, और जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है, अगर सारा का सारा रेवेन्यू वो स्पेंड नहीं करते, खर्च नहीं करते, कुछ हिस्सा उसका बचा लेती है गवर्नमेंट, तो दैट सेविंग, that is the public saving also available to the firms, to the other investors. वो ले सकते हैं, इसको borrow कर सकते हैं, and they can invest in their projects. So as we discussed types of saving, जैसे हमने कहा कि एक प्राइवेट सेविंग है और एक पब्लिक सेविंग है. सो प्राइवेट सेविंग S is a function of disposable income, इनकम माइनस कंजम्पशन. तो इसको हम कह सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम जो होती है हाउस होल्ड्स की या इंडिविजुअल्स की, उसमें से जो लोग खर्च करते हैं और बकाया जो बच जाती है रकम, उसको हम प्राइवेट सेविंग का नाम देते हैं. सो प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस T माइनस C. सो डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन इज द प्राइवेट सेविंग ऑफ द individuals or the household. Public saving क्या है? Public saving is the taxes minus government spending, revenue minus government spending. जितना भी taxes हैं किसी इकोनॉमी में, उसको अगर आप जमा कर लें और उसमें से इकोनॉमी के गवर्नमेंट के खर्चे निकाल दें, जो बाकी बच जाता है, that is the public saving. So what would be the national saving? जैसा कि हमने कहा कि दो तरह की सेविंग होती है इकोनॉमी में, मुल्क में, प्राइवेट सेविंग और public saving. Now what would be the national saving? If we sum up, add these two types of saving, the private saving plus public saving, इनको अगर हम जमा कर लेते हैं तो we'll get the national saving. So national saving is equal to private saving plus public saving. Private saving क्या है? Y minus T minus C plus T minus G. Now if we simplify this equation, अगर आप इसको simplify करें, Y minus T minus C plus T minus G, तो T से cancel out हो जाता है, and then we are left with Y minus C minus G. So we can say that the national saving or the saving at the country level is equal to the total income output in the economy minus consumption at the individual, at the household level, माइनस दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अगर आप कंजम्पशन को और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को नेशनल इनकम से निकाल देते हैं तो यू विल गेट द टोटल नेशनल सेविंग अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, अवेलेबल फॉर परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स, अवेलेबल फॉर परचेजिंग ऑफ अदर एसेट्स इन द इकोनॉमी, अवेलेबल होती है टू द फर्म्स, टू द इंडिविजुअल, टू द गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. सो नेशनल सेविंग इज इक्वल टू national income minus consumptions
at the household level minus government spending. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट सेविंग क्या है, पब्लिक सेविंग क्या है और नेशनल सेविंग क्या है। प्राइवेट सेविंग ये है कि जो एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल अपनी डिस्पोजेबल इनकम से खर्चा निकालने के बाद बचाता है, उसको हम प्राइवेट सेविंग कहते हैं। प्राइवेट पब्लिक सेविंग ये है कि जो टोटल टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के, जो इनकम का ज़रिया होता है किसी इकानमी में, उसमें से अगर उसके अखराजात को अगर मिनहा कर दें, निकाल दिया जाए, तो आपके पास पब्लिक सेविंग आ जाती है। और अब इन दोनों को अगर आप जमा कर लेते हैं तो यू विल गेट द नेशनल सेविंग। और हमने ये डिटरमिन किया, हमारे पास जो इक्वेशन अब आइडेंटिटी आई नेशनल सेविंग की वो है y माइनस सी माइनस जी। अगर आप नेशनल इनकम से हाउस होल्ड कंजम्पशन निकाल दें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग निकाल दें, तो यू विल गेट द नेशन सेविंग। नाउ डिग्रेशन क्या है बजट? वी हैव टू सॉर्ट्स ऑफ possibilities, and one is the budget surplus, the other is budget deficit. Now when T is greater than G, when the taxes are greater than G, in other words you can say when the revenue in the economy in the country is greater than G, so then there is a budget surplus in the economy. So then जब surplus होता है तो क्या होगा? पब्लिक सेविंग्स होती हैं, पब्लिक सेविंग में इजाफा हो जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है? सम टाइम देयर आर बजट डेफिसिट इन द कंट्री इन द इकोनॉमी। अब जब बजट डेफिसिट होता है तो फिर क्या होता है? In that case, when budget deficit is when T is less than G, जब आपका रेवेन्यू कम है, खर्चात ज़्यादा हैं, तो बजट जो गवर्नमेंट का होता है वो खसारे में चला जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। जब अब बजट खसारे में चला जाता है तो पब्लिक सेविंग जो है नेगेटिव होती हैं, पब्लिक सेविंग एग्जिस्ट नहीं करती। और जब हम ये कहते हैं कि T इज़ इक्वल टू G, जब टैक्सेस इज़ इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन दैट केस जितनी इनकम है गवर्नमेंट की, जितने रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, उतने ही उसके अखराजात हैं, उतने उसके खर्चे हैं। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेविंग जो है ज़ीरो है। सो एट पब्लिक लेवल, एट द गवर्नमेंट लेवल, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। If T is greater than G, so then there is a positive sign for public saving. If T is less than G, then there is a negative public saving, no public saving. And if T is equal to G, then there is also zero public saving. Just to give you an idea about the difference about the US budget, you can see the difference. You can see there are a lot of ups and downs. एंड ईच ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे है, इसको अगर आप ऊपर वाले पॉइंट्स को देखें तो ये डिफरेंट पीरियड्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स के। बाज़ गवर्नमेंट्स जो हैं यूएस गवर्नमेंट में अच्छा परफॉर्म किया एंड इकानमी ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव इजाफा सरप्लस होगा बजट। जब बाज़ ईयर्स में बाज़ गवर्नमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इकानमी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से बजट डेफिसिट में चला गया। बजट डेफिसिट की वजह से वो इकानमी डाउन होगी। जस्ट एन आइडिया कि किस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अनदर curve is the US federal government debt. Fun fact is क्या है, in the early 90s nearly 18 cents of every tax dollar went to pay interest rate on debt, but today it is about 9 cents. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेट में खासी कमी वाक़ई आई है। जो डेट पेमेंट्स हैं 90s में ज़्यादा थी, अब उसमें कमी वाक़ई आती जा रही है। Now we would like to explain the equilibrium in both market and in the loanable funds market। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास किसी मार्केट में इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइड्स देखनी पड़ती हैं, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड। डिमांड साइड में हमने डिमांड फॉर लोनेबल कर्व्स ड्रा किया, जो कि हमने कहा कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। दैट टेल्स अस कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम हो जाती है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स बढ़ जाती है। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, एज वी नो दैट we have an equation at the national saving, supply comes from savings,
and national saving S is equal to Y minus C minus G, and we assume that we know that Y bar is given, T is also given, G is also given. So if they are all given, then national savings are also given, are exogenous in the economy. So we have a vertical slope of the supply of loanable funds, right? So that is given. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, we have two axes. On y axis we are measuring rate of interest, on x axis we are measuring saving and investment. जो supply है of loanable funds is given, so that is why we have vertical supply curve. National saving does not depend on R, and so the supply curve is vertical. We have a negatively slope demand curve for loanable funds, जैसा कि हमने previous slides में देखा, explain किया details में कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है. हमने ये कहा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट कम होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स बढ़ जाती है, डिमांड फॉर बोरोइंग फंड्स बढ़ जाती है और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है. सो बाय दिस रिलेशन वी कैन ड्रा ए नेगेटिवली स्लोप demand curve for loanable funds. So we have a vertical supply curve of loanable funds, demand curve. यहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं. That point determines the equilibrium in the loanable funds market. जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, ये दोनों यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, एंड दैट पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम इन द लोनेबल मार्केट. वी हैव इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, then we have an equilibrium level of investment in the loanable funds market. Now what is the special role of R that it plays? Special role of R क्या है? R adjusts the equilibrium the goods market and the loanable funds market simultaneously. अगर आपको याद होगा, अगर if you remember, हमने जो इक्वेशन बनाई थी गुड्स मार्केट में, द फाइनल गुड्स एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर थी, आप देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई उसमें वाई बार वाज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. सी जो वाज डिपेंडिंग ऑन वाई बार माइनस टी बार प्लस आई वाज डिपेंडिंग ऑन आर प्लस जी बार वाज फिक्स्ड. तो उसमें हमने देखा था कि सारे के सारे वेरिएबल फिक्स थे. ओनली आर वाज प्लेइंग ए रोल to determine the equilibrium in the goods market, aggregate demand और aggregate supply को बराबर करने में सिर्फ R ही जो वेरिएबल था, R ही एक ऐसा पैरामीटर था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को डिटरमिन कर रहा था, मेंटेन कर रहा था. इसी तरह यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे भी अगर आप नोट करें, S bar is fixed, Y bar is given, G bar is given, T bar is given. इन्वेस्टमेंट जो है is depending on the interest rate. यहाँ पे loanable funds market में भी जो है, and the R is playing an important role in determining equilibrium in the loanable funds market. So R adjusts to the equilibrium the goods market and the loanable market simultaneously. दोनों markets में R एक ऐसा variable है, एक ऐसा पैरामीटर है जो कि साइमल्टेनियसली दोनों मार्केट्स में इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करता है. सो इफ लोनेबल फंड मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, देन वी कैन से दैट द गुड्स मार्केट विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि आर जो है साइमल्टेनियसली दोनों मार्केट्स में इक्विलिब्रियम लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो इफ लोनेबल फंड मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, देन वी कैन से दैट I investment is equal to Y minus C minus G. So if we add up C plus G in this equation on both sides, so we get the Y is equal to C plus I plus G. So that tells us the equilibrium in the goods market. So we can say that that R has a special role in determining the equilibrium in the both goods market as well as in the this loanable funds market. So
जिस वक्त लोनेबल फंड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा, लोनेबल फंड्स मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पे होगा, जब इन्वेस्टमेंट जो है इज इक्वल टू वाई माइनस सी माइनस जी होगी। और जब इन दोनों साइड में अगर आप ऐड कर देंगे सी प्लस जी को, तो विल गेट y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो ये जो इक्वेशन है हमें बताती है कि गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जो लोनेबल फंड्स मार्केट है, दैट टेल्स अस द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स। सो आर has a special role, is playing a special role and determines equilibrium in the goods market at the same time as well as equilibrium in the loanable funds market. We would like to explain to learn how we can bring a shift, a change in the curve if there is any change in one of the variables, in any parameters. तो किस तरह से जो इक्विलिब्रियम में चेंज आती है, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आती है, और किस तरह से दैट शिफ्ट और चेंज इफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट और इन द इकोनॉमी में क्या असरअंदाज होता है। सो इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन से वेरिएबल जो हैं, अगर हमने चेंज को देखना है, अगर हमने शिफ्ट को देखना है और उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे देखना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल इंडोजिनस है, कौन से वेरिएबल एक्सोजिनस है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पहले लेक्चर में दोनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था कि इंडोजिनस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज़ मॉडल के अंदर डिटरमिन की जाती हैं। मॉडल को एनालाइज करने के बाद उनकी वैल्यूज़ को निकाला जाता है, डिटरमिन किया जाता है। और एक्सोजिनस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज गिवन होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, उनको हमें निकालना नहीं पड़ता। तो आपको इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द शिफ्ट और द चेंज इन एनी ऑफ द पैरामीटर विल ब्रिंग ए चेंज इन द इकोनॉमी, ब्रिंग ए चेंज इन द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड लोनेबल फंड्स मार्केट, वी मस्ट नो दैट, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एंडोजिनस वेरिएबल है और कौन सा एक्सोजिनस वेरिएबल है। सो फॉर ईच कर्व इन द डायग्राम, जो भी अभी तक हमने डायग्राम देखे, हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस क्या है वेरिएबल्स की, स्लोप क्या है कर्व का, एंड ऑल द थिंग्स दैट कैन शिफ्ट द कर्व, और जितने भी वेरिएबल हैं, जितने पैरामीटर हैं जो कि शिफ्ट ला सकते हैं, उसका भी अंदाज़ा होना चाहिए। इन चीज़ों को यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ ईच चेंज इन दी डायग्राम और इन दी मार्केट ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट एज वेल एज इन दी लोनेबल फंड्स मार्केट। तो इस चीज़ को अब हम देखेंगे कि किस पैरामीटर को अगर हम चेंज करते हैं तो किस तरह से इक्विलिब्रियम में चेंज आती है गुड्स मार्केट में भी और लोनेबल फंड मार्केट में। तो उसमें हम अब इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ अगली स्लाइड्स में। नाउ मास्टरिंग द लोनेबल फंड्स मॉडल, थिंग्स दैट कैन शिफ्ट दी सेविंग कर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सप्लाई को नेशनल, जैसा कि हमने कहा कि नेशनल सेविंग बेसिकली इज़ द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इन द लोनेबल फंड्स मार्केट। तो सप्लाई को शिफ्ट करने के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि सेविंग को चेंज कर सकती हैं और सप्लाई को शिफ्ट कर सकती हैं। जैसा कि हमने कहा कि नेशनल सेविंग जो है इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू सेविंग्स, प्राइवेट एंड पब्लिक सेविंग। तो नेशनल सेविंग चेंज हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइवेट सेविंग एज वेल एज बिकॉज ऑफ द चेंज इन पब्लिक सेविंग। तो प्राइवेट सेविंग में कैसे चेंज आएगी, पब्लिक सेविंग में कैसे चेंज आएगी, चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है? Fiscal policy has two parameters, one is the government expenditure, other is the taxes। सेविंग गवर्नमेंट की कैसे बढ़ सकती हैं, पब्लिक सेविंग कैसे इजाफा हो सकता है या कैसे कमी वाक़ हो सकती है, ये जो दो पैरामीटर्स हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस की वजह से इजाफा या कमी वाक़ हो सकती है। अगर हम ये कहते हैं सपोज टी इज़ ग्रेटर दैन जी, तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल से पब्लिक सेविंग जो है उनमें इजाफा हो जाएगा और जिससे नेशनल सेविंग में बढ़ जाएंगी और सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह the other thing, if government expenditure goes down,
भी में कमी वाक़ई होती है तो फिर भी पब्लिक सेविंग में इजाफा होगा और नेशनल सेविंग बढ़ जाएंगी और सप्लाई कर्व राइटवर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर टैक्सेस कम हो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो पब्लिक सेविंग कम होंगी, और जब पब्लिक सेविंग कम होंगी तो नेशनल सेविंग कम होंगी। जब नेशनल सेविंग कम होती है तो सप्लाई में कमी वाक़ई हो जाती है और सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द parameter variable that can shift the supply curve of loanable funds in the loanable fund market. Second is the प्राइवेट सेविंग। प्राइवेट सेविंग किस तरह से इफेक्ट हो सकती हैं, किस तरह से तब्दील की जा सकती हैं, किस तरह से चेंज हो सकती हैं। प्रेफरेंसेस जो हैं कंज्यूमर्स की, हाउस होल्ड की जो प्रेफरेंसेस हैं, दैट कैन ब्रिंग ए चेंज इन प्राइवेट सेविंग। जब प्रेफरेंस लोगों की तब्दील होती हैं, अखराजात की प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं तो उससे सेविंग इफेक्ट हो सकती हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। सेकंड, टैक्स लॉज दैट इफेक्ट सेविंग। अगर गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर लेविड ऑन द कंज्यूमर, ऑन द हाउस होल्ड, उनमें तब्दीली वाक़ई होती है तो प्राइवेट सेविंग में तब्दीली वाक़ई होती है। जब प्राइवेट सेविंग में तब्दीली वाक़ई होगी तो नेशनल सेविंग में तब्दीली वाक़ई होती है और सप्लाई कर्व अकॉर्डिंगली राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। सो things that can shift saving curve or that can shift supply curve are two factors. One is the public saving और the other is private saving. पब्लिक सेविंग में तब्दीली जब आती है तो that change is due to change in T or G, taxes or government spending. So that change can affect the national saving as well as the supply of loanable funds in the loanable fund market. इसी तरह दूसरा जो चीज़ सेविंग, नेशनल सेविंग को शिफ्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है, दैट इज़ द प्राइवेट सेविंग। और प्राइवेट सेविंग में कैसे तब्दीली आ सकती है, कैसे चेंज आ सकती है? दैट चेंज कैन कम आइदर by the change in preferences of the household or change in the tax laws of the government, tax imposed on the individual or the household by the government, उसमें तब्दीली आती है तो प्राइवेट सेविंग में तब्दीली आएगी। तो दोनों चीज़ें जो हैं पब्लिक सेविंग और प्राइवेट सेविंग कैन ब्रिंग ए शिफ्ट अ चेंज इन द नेशन सेविंग, shift the supply curve of loanable funds market to the right or left side. We can discuss a case study, especially if we talk about US economy. Reagan deficits की बात करते हैं। Reagan policy during early 1980s was, and there were increase in defense spending, delta G was positive, and there were big tax cut in that government, and delta T was less than 0. तो जब रेगन्स ने क्या किया कि बहुत अखराजात बढ़ा दिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, तो जो चेंज इन एक्सपेंडिचर वाज इज पॉजिटिव, और दूसरी साइड पे दे हैव big tax cuts, and that change in tax was, or the change in revenue was less than 0, negative, कम हो गया। तो what will happen to the budget deficit? budget deficit बढ़ गया। जब budget deficit बढ़ा तो क्या हुआ? According to our model, both policy reduce national saving. जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े या टैक्स में कमी वाक़ई हुई तो पब्लिक सेविंग में इजाफा हो गया, पब्लिक सेविंग में कमी वाक़ई हुई। जब पब्लिक सेविंग में कमी वाक़ई हुई तो दैट हैज़ चेंज्ड और डिक्रीज द नेशनल सेविंग। जब नेशनल सेविंग में कमी वाक़ई हुई तो क्या हुआ? सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। So we can see that, as we know that national saving is equal to y bar minus c, y bar minus t minus g bar. So as g increases, this will lead to decrease in s bar, and similarly decrease in t bar increase the consumption and decrease the saving, private saving. So both of the parameters, whether there was a change in government expenditure, whether there is a change in taxes, can affect national saving, or national saving was affected of the US economy, and then supply curve was shifted. We can say that the increase in deficit reduce saving, and saving में जब कमी वाक़ई होती है तो supply curve of loanable funds जो है कमी वाक़ई होती है, और then which causes the supply curve will shift from S1 to S bar, and जब सेविंग में कमी वाक़ई होती है तो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है फ्रॉम R1 to R2, और
इन्वेस्टमेंट में कमी वाक़या हो जाती है फ्राम I1 टू I2. सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ वन ऑफ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ और द केस स्टडी ऑफ रेगन डेफिसिट्स. रेगन डेफिसिट्स क्यों हुआ? उन्होंने एक तरह से एक साइड पे अखराजात बढ़ा दिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, दूसरी साइड से उन्होंने टैक्स में कट कर दिए. तो दोनों तरह से जो सेविंग्स, नेशनल सेविंग में कमी वाक़या हो गई, सप्लाई कर्व में कमी वाक़या हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट में कमी. सो दिस इज़ हाउ we can analyze the change, a shift in one of the parameters variable, and we can see that how that shift, a change, is affecting the whole economy. Other things that can change the equilibrium are, number one, certain technological innovations. If there are innovations taking place in the economy, and that can bring a change. अब innovation जब आती है तो क्या होता है, नई चीज़ें आती हैं, प्रोडक्शन में इजाफा होता है. प्रोडक्शन में इजाफा जब होता है तो क्या होगा, फर्म की इन्वेस्टमेंट भी उसमें बढ़ती है, प्रोडक्शन में इजाफा होता है. सो उससे जो इन्वेस्टमेंट कर्व है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो क्या होगा, इकोनॉमी में पॉजिटिव मूवमेंट आती है, आउटपुट में भी इजाफा हो जाता है. अब दूसरी जो चीज़ है वो किस तरह से, दूसरा फैक्टर क्या है, टैक्स लॉज दैट इफेक्ट इन्वेस्टमेंट. टैक्स लॉज में अगर तब्दीली आती है तो वो भी इन्वेस्टमेंट को असरअंदाज हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट अगर गवर्नमेंट इस तरह का इंट्रोड्यूस कर दे तो उससे भी इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है. सो दूसरी जो चीज़ है, दूसरी साइड, अभी पहले जो पिछली स्लाइड में हमने सप्लाई को इफेक्ट किया, अभी हम अगर डिमांड को इफेक्ट करते हैं तो दैट कैन आल्सो ब्रिंग ए चेंज इन द इकोनॉमी. विल सी दिस इन दिस डायग्राम. एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड. अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड में, जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड में कैसे तब्दीली वाक़या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड में तब्दीली वाक़या हो सकती है बाय ए चेंज इन इन्वेस्टमेंट. और वो कैसे होगी, आइदर, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आ सकती है आइदर बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, इनोवेशंस हो जाती हैं. जब इनोवेशंस होती हैं तो जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं. जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में नॉर्मली इजाफा हो जाता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इजाफा होता है, बट प्लीज़ कीप इन माइंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहती है. सो चेंज इन आइदर ऑन द सप्लाई साइड और ऑन द डिमांड साइड कैन इफेक्ट the equilibrium in the loanable funds market and can also affect the income or the output in the economy. तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे इस डायग्राम में जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है. On y-axis we are measuring rate of interest, on x-axis we are measuring saving and investment as usual. Initially the economy, the market is in equilibrium at the point where S bar, which is the supply curve of loanable funds, is intersecting I1, and at this point the interest rate which is prevailing in the market is R1 and investment level is I1 and also invest saving is also S1. Now suppose ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टैक्स कट की वजह से, चेंज इन टैक्स लॉज की वजह से अगर इन्वेस्टमेंट की डिमांड में इजाफा होता है, इन्वेस्टमेंट लोग बढ़ा देते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीनरी आ गई, इनोवेशंस आ जाती हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है, तो इन्वेस्टमेंट कर्व इज़ शिफ्टेड फ्राम I1 टू I2. जब इन्वेस्टमेंट कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है फ्राम I1 टू I2, तो अगर आप ग्राफ में देखें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया है फ्राम R1 टू R2, बट इफ यू सी दैट investment is the same, but the equilibrium level of investment cannot increase because the supply of loanable funds is fixed. सप्लाई फिक्स है, जब सप्लाई में तब्दीली वाक़या नहीं हुई तो जो इन्वेस्टमेंट है, इक्विलिब्रियम लेवल इन्वेस्टमेंट है, उसमें तब्दीली वाक़या नहीं हुई. तो इन्वेस्टमेंट में तब तब्दीली वाक़या होगी जब सप्लाई ऑफ फंड्स में तब्दीली वाक़या होगी. जब सप्लाई ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है, जब सप्लाई ऑफ फंड्स में कमी वाक़या होगी, इन्वेस्टमेंट में कमी वाक़या हो जाती है. सो whenever there is a change in investment demand due to change in innovation, technological change or due to change in tax laws,
तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कर्व जो है, डिमांड कर्व जो है लोनेबल फंड्स मार्केट में, उसमें ऊपर नीचे कमी या बेशी होती है, शिफ्ट होता है, ऊपर शिफ्ट होता है या नीचे शिफ्ट होता है। तो there will be change in the interest rate only, there will be change in the interest rate in positive side, in negative side, interest rate बढ़ जाता है, कम हो जाता है, depending upon where the investment or the demand curve is shifting, and investment will remain same. Why? Because the supply of loanable funds market is same. So this is another parameter that can shift or bring a change in the investment or bring a change in the economy. This was all about today's. Now I will try to summarize what we have learned today. The real interest, we have seen that the real interest rate adjust to equate the demand for and supply of goods market and loanable market. तो शुरू में हमने देखा, आज हमने स्टार्ट किया जब लेक्चर, तो हमने ये कहा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आउटपुट किस तरह से डिटरमिन होती है, उसकी प्राइसेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की किस तरह से डिटरमिन होती हैं, और किस हद तक, किस लेवल तक फर्म जो हैं आउटपुट को, इनपुट्स को हायर करती रहती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। आज का जो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा आउटपुट जब हो जाती है, हाउ द आउटपुट इज, हाउ वी कैन डिटरमिन दैट आउटपुट इज, हाउ आउटपुट इज यूज्ड, that we have determined or produced in the previous lecture by factors of production. तो आज हमने देखा किस तरह से यूज होती है, उसके लिए हमने दो मार्केट को एनालाइज किया। टू मार्केट्स वर एनालाइज, गुड्स मार्केट एंड लोनेबल फंड्स मार्केट। गुड्स का मार्केट में हमने ये देखा कि तीन कंपोनेंट्स हमने एग्रीगेट डिमांड देखी और एग्रीगेट सप्लाई को देखा, और दोनों को इक्वेट किया तो हमने गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया। एज वी नो दैट जीडीपी जो है इज इक्वल टू वाई प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा कि एग्रीगेट डिमांड जो है y जो है is equal to only c plus I plus g because nx is 0, because we are talking about a closed economy and country जो है is not involved in international trade with other countries. So तीनों कंपोनेंट्स को हमने अलग से डिस्कस किया, डिमांड फॉर गुड्स को, और उसके बाद हमने ये कहा कि सप्लाई इज गिवन, इज फिक्स्ड. सो व्हेन वी हैव कंबाइंड दीज टू we have determined the equilibrium in the goods market. हमने ये देखा उसमें एक जो चीज़ सामने आई उसमें बाकी सारे पैरामीटर फिक्स हैं, ओनली इंटरेस्ट रेट इज द वेरिएबल और द पैरामीटर दैट ब्रिंग्स और एडजस्ट द गुड्स मार्केट इन द इक्विलिब्रियम. उसके बाद जब हमने लोनेबल फंड्स की मार्केट की बात की तो उस मार्केट में भी हमने सप्लाई और डिमांड को देखा. अब डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स की जब हमने बात की तो हमने ये कहा कि डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इन द मार्केट. जब इंटरेस्ट रेट में कमी बेशी वाक़ होती है तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स अकॉर्डिंगली चेंज होती है. तो हमने नेगेटिवली स्लोप जो है डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स ड्रा किया और उसके बाद इस मॉडल को मुकम्मल करने के लिए वी नीड ए सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड वी सेड दैट सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज गिवन, इज फिक्स्ड, राइट. तो उसके बाद देन वी डिटरमिन्स द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, वो इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटरमिन किया. सो दैट was the first thing जो आज हमने सीखी. We learned that goods learned the equilibrium in the goods market and the loanable funds market. उसके बाद हमने लोनेबल फंड सप्लाई डिटरमिन करने के लिए हमने देखा कि सप्लाई कहाँ से आती है लोनेबल फंड्स मार्केट में. डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स जो डिमांड करती हैं इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो डिमांड करती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स को, तो उसकी सप्लाई कहाँ से आती है. उसको हमने ये देखा कि सप्लाई ऑफ फंड्स comes from savings, national saving. अब नेशनल सेविंग हमने डिस्कस किया कि उसके दो हिस्से होती हैं, एक प्राइवेट सेविंग होती है और दूसरी पब्लिक सेविंग होती है. प्राइवेट सेविंग क्या है? हाउस होल्ड जो सेव करते हैं फ्रॉम कंजम्पशन से, इनकम माइनस कंजम्पशन निकाल लें तो डिस्पोजेबल इनकम से कंजम्पशन निकाल लें तो प्राइवेट सेविंग आ जाती है. दूसरा हिस्सा जो नेशनल सेविंग का दैट इज पब्लिक सेविंग, दैट कम्स फ्रॉम टी माइनस जी. अगर टी ज़्यादा हो जी कम हो तो पब्लिक सेविंग होती है. दोनों को जमा कर लें तो विल गेट द नेशनल सेविंग. तो दैट we know that the supply of loanable funds come from national saving. तो ये हमने कहा कि जो supply है is fixed, all supply of loanable funds that is national saving is also fixed given in the economy, और demand जो है वो negatively sloped है तो equilibrium determine होता है. उसके बाद हमने देखा either an increase in investment demand cause the interest rate to rise but does not affect the equilibrium level of investment if
द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज फिक्स्ड। तो हमने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग इन द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। अगर आप लोनेबल फंड्स की जो सप्लाई है, जो फंड्स अवेलेबल हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, उसमें तब्दीली लाते हैं तो इन्वेस्टमेंट में तब्दीली आती है। इन्वेस्टमेंट कर्व, जो सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होता है तो इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा होती है। अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाता है। अगर सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो सप्लाई में इन्वेस्टमेंट में कमी वाक़ई हो जाती है। सो इन्वेस्टमेंट कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स आर नेशनल, इन अदर वर्ड नेशनल सेविंग इन द इकोनॉमी। And if we change the investment demand by shifting the investment demand curve upward or downward, then there is only change in the interest rate, and then this change will not bring a change in the investment in the country. So this was dear student, this was all about today's class. आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। So we have done with the chapter 3. Chapter 3 जो है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, that is macro economic by मनकीव, उसका chapter 3 आज हमने complete कर लिया है। तो please go back to your home and study the whole chapter from the book. There are a lot of other examples also given in the book. जब आप किताब पढ़ेंगे, उसकी अंग्रेज़ी बड़ी आसान है, बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसमें दी हुई हैं, एंड आई होप जब आप उसको खुद से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the whole the two lectures which we have completed today, previous lecture and today's lecture. So these two lectures were comprised on chapter 3. तो chapter 3 आज हमने ख़त्म किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।